Hello, welcome to you in this physics video, and in today's video we are going to learn of about refraction through prism. So what is this prism? We are known over there it is a vase shaped which is bonded by that at least two slanted surfaces, and these surfaces are inclined to each other. So that angle between these two surfaces we are going to call it is as angle of refraction. So here it is P, Q and R. These are the three edges of the prism. Now let us to draw a perpendicular on PQ surface. So this is that perpendicular which I have drawn on PQ surface. So it is the first perpendicular. Now check over there how much is the angle. This angle how much it is? It is 90 degree. How much is this angle? It is 90 degree. Okay. Now let us suppose that a ray of light it is going to fall on this with at an angle. Okay, so let this ray of light it is coming from A and it is falling at B. This is the B point. Okay, so the angle at which it is going to fall it is angle of incidence I. Okay, now if the prism will not come in the path of the ray, then how it will go? So it will go quite straight, then it will be over there like this one. Okay, so that means this angle is I. So what will be the measurement of this angle? This angle will be again I. Okay, this angle will be again I. Now due to the prism, what will happen? That medium of the light will change. Okay, now this line we have supposed that without the prism, but if there is a prism, so what will happen? This light at B, it will bend toward the normal and it will go on the other face. Okay, so this ray of light it goes from B to C. Okay, so this ray of light it is C, and now this angle over here, refracted ray and that normal. Okay, so this angle which is between them I have supposed it to be R1. Okay, so you can come to know over here how much is this angle, how much is the measurement of this angle. So the total angle over here it is I, and this much angle is only R1, so we are getting it is I minus of R1. This is the measurement of the angle. Now over here when this ray of light it falls at C, so again at C you will draw a perpendicular. So there is a perpendicular drawn. Okay, this is the perpendicular drawn at C. Now these two perpendicular, if we exceed them, so they are going to meet each other. Okay, so this point let me to suppose it is as E point. Okay, so there is this angle which is formed. Okay, now the angle at which it is going to fall, this is second normal which we have drawn. तो इस सेकेंड नॉर्मल के साथ ये जो रे ऑफ लाइट है BC, वो जो एंगल फॉर्म करती है, दिस इज R2 एंगल. आई हैव गिवन दिस नेम. ठीक है. नाउ दिस रे ऑफ लाइट इट गोज आउट, सो इट विल बेंड टुवर्ड द बेस. ठीक है, तो ये बेस की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. सो दिस मूव्स टुवर्ड D एंड द एंगल विद नॉर्मल इट इज गोइंग टू बी E. ठीक है. नाउ इफ आई विल रिट्रेस इट बैक, अगर मैं इसको रिट्रेस बैक करता हूँ, सो देन इट विल appear to meet with this actual path of the ray. Okay, so this is actual path of the ray. So this point it is M point. This point is M point, and here that the angle between actual path and that emergent path it is taken to be angle of deviation. Delta is this one. Okay, this is the angle of deviation. Now just to check over there, जो क्यू आर बाउंड्री थी, जैसे वो सा क्यू आर बाउंड्री. ठीक है, तो इस क्यू आर बाउंड्री के ऊपर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जैसे वो सा परपेंडिकुलर N2 परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट थी वो कुछ इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर C के ऊपर फॉल कर रही थी, तो ये एंगल बना रही थी R2. ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से बाहर इस तरह से आती है. ठीक है, बाहर बेंड हो जाती है, तो ये कौन सा एंगल बन गया था, E. ठीक है, तो इसको हमने रिट्रेस बैक किया.
ठीक है। नाउ चेक ओवर देयर, ये जो नॉर्मल है और ये जो एमरजेंट जो लाइन है, ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो इसका ये एंगल जो है वो क्या बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया, ठीक है। ये एंगल क्या बन गया, वर्टिकल टोटल एंगल, ठीक है। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया। तो यहाँ पर इतना सा एंगल तो R2 था, तो ये एंगल क्या रह जाएगा, दिस विल बी E माइनस ऑफ R2, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले एंगल की मेजरमेंट क्या शो की जा रही है, इट इज़ आउटसाइड, आई एम गोइंग टू राइट, इट इज़ E माइनस ऑफ R2, ये मेरे पास इसकी मेजरमेंट है। ओके, नाउ लेट अस टू लुक एट अगेन। अब मेरे पास यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बन रही है कुछ इस तरह से, दिस इज B पॉइंट ओवर हेयर एंड दिस इज दैट रिफ्रैक्टेड रे। तो ये B2C रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास बन रही है एंड दिस साइड इट इज गोइंग टू बी, दिस इज M पॉइंट, हेयर इट इज डेल्टा, ठीक है। तो हमारे पास चेक ओवर देयर, ये जो डेल्टा है इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, और अंदर कौन सा एंगल है, I माइनस R1 यहाँ पर है और E माइनस R2 इस जगह पे बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा है इट इज़ द एक्सटीरियर एंगल, सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। सो ऑलरेडी वी रेड दिस इन मैथमेटिक्स कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो उन इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। सो दस I प्लस E टेकिंग आउट नेगेटिव फ्रॉम दिस एंड इट इज R1 प्लस R2, दिस इज व्हाट, दिस इज डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास डेविएशन बन जाती है। नाउ चेक ओवर देयर, जो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रही है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब है जिसमें क्या होंगी, चार साइड होगी। तो कौन सी है मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल इज देयर, इट इज BQCE, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है, जस्ट चेक इट ओवर हेयर, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ओवर हेयर, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल था N2 और ये इस तरफ हमारे पास N1 नॉर्मल था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से P, ये Q, ये आगे को साइड थी हमारे पास इसकी R, ठीक है। तो ये E पॉइंट है। तो चेक ओवर हेयर, दिस एंगल इट इज सेड टू बी A, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो इसलिए नॉर्मल और इस PQ के बीच का ये एंगल कितना 90, इधर भी ये क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एंगल कितना था 90, और ये एंगल हमारे पास लेट इट टू बी E, इसको E एंगल ही हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल, 1 2 3 4, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस A प्लस E इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 90 180 उधर जाएगा तो 360 माइनस 180, यानी कि A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड देयरफॉर वी गेट ओवर हेयर A प्लस E किसके बराबर हुआ मेरे पास, इट इज़ 180 डिग्री के बराबर हुआ। ओके, सो मेक इट एज, नाउ चेक ओवर देयर, देयर इज वंस अगेन एक और ट्राइंगल हमारे पास बन रहा था जो BCE, ठीक है। तो चेकआउट कि ये ट्राइंगल कैसा है, ये इस तरह से हमारे पास कुछ ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, दिस ट्राइंगल इट इज़ B, हेयर इट इज़ C, हेयर इट इज़ E, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल क्या है, इसको E बोला गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल BCE है, तो BCE के तीनों एंगल का सम क्या होगा, दैट इट इज़ R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर E का मेजरमेंट क्या होगा, इट इज़ 180 डिग्री माइनस ऑफ R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर जो मेजरमेंट है E एंगल का, ठीक है। सो यू कैन पुट दिस वन एट दिस पॉइंट, ठीक है। E की वैल्यू यहाँ पे रख दो। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म,
ठीक है। तो इसलिए ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो क्या बनाइए, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ई। ठीक है, तो ई की वैल्यू तो मेरे पास ये आई, इट इज़ 180 डिग्री प्लस ऑफ R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हुई तो इसका मतलब हुआ एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इट इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सो इफ़ यू विल मेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, so this is make it as equation number 2. Now put this value of a in this equation number 1, then we will get this one. Therefore put value of equation 2 in first. ठीक है, तो क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2 को क्या पुट करना है आपने, दैट इट इज़ ए। ठीक है, सो इट इज़ आई प्लस ई माइनस ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा। ओके, सो दिस इज दैट इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म। ठीक है, सो व्हाट आर द सिंपल मीनिंग ओवर हेयर, तो सिंपल मीनिंग कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें डेल्टा इट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन है, एंड ओवर देयर दिस आई इट इज़ इंसिडेंस एंगल, and that E it is over here emergence angle, emergence angle, A is over there angle of prism. So this is what, this is equation of prism. Okay, now here ये जो हमारे पास डेविएशन एंगल है, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर। सो हेयर that it is going to depend on first point, it is angle of incidence। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, वट इट डू नॉट डिपेंड ऑन एमरजेंस, क्योंकि ई जो है आई के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये आई के ऊपर डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ओवर देयर एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, इट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस इट इज़ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के ऊपर, एंड फोर्थ पॉइंट विल बी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए दैट इट इज़ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो डेविएशंस हैं ये डिपेंड कर रही है यहाँ पर इन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, सो ओवर हेयर इम्पोर्टेंट टू नोट, एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के बराबर है, इट इज़ R1 प्लस R2। ठीक है, और डेविएशन एंगल किसके बराबर हुआ, इट इज़ आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो इसके बराबर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ that minimum deviation and its cases. So thank you for watching this video.